Hello students, welcome to the YouTube channel of Welkin National School, Vasai East. This is Mrs. Deepa Vallakati, the subject teacher of science. Today we are going to learn chapter number 16, Natural Resources from Standard 7th. Now children, do you have any idea regarding the natural resources? So, that natural resources are those which we get freely from the nature. Those are called the natural resources. Example, many of the natural resources like the air, water, plants, animals, soil, these are all natural resources. Yes, now we get many resources or many substances from the nature. They satisfy a variety of our daily needs. Yes, why do we require these natural materials or natural resources? Because they will give or they will satisfy many of our daily needs. Example, we get water from the nature, so this is our natural resource. But why do we require it? We require it for the taking bath, okay, and cleaning the vessels, keeping our surroundings clean, okay, keeping our body cool. For this all purpose we require. But what is the main requirement of this water? It is for the drinking purpose. Correct, no? So many of the natural resources having their specific purposes, okay, for the living of the entire world. Soil, stone, minerals, air, water, plants and animals on the earth are all the various kinds of the natural resources. Okay, what is mean by the lithosphere? Okay, you have been heard about the lithosphere. So ये lithosphere क्या है? जो ज़मीन से अटैच रहता है वो सारा स्पीयर को हम लोग बोले हैं lithosphere. The natural resources in the earth's crust. The earth's lithosphere is made up of land and the hard crust beneath it. ओके, ये लिथोस्फीयर क्या है? जो अर्थ का सरफेस है और उसके नीचे बहुत हार्ड वाला जो पार्ट है ना, ये पूरे पार्ट को हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं. सो द लिथोस्फीयर इज नॉट होमोजीनियस बट इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स. क्या हम लोग जब ज़मीन को नीचे खोदते रहेंगे तो हम लोग को डू वी गेट अ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर? नो, वी विल गेट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. करेक्ट, नो? द लिथोस्फीयर इज नॉट होमोजीनियस. ये पूरा एक नहीं है, ये बहुत अलग अलग चीज़ों से बना है. इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी ऑफ द रॉक्स. रिसोर्सेज इन द अर्थ क्रस्ट इंक्लूड वॉट? इसके अंदर और नीचे खोदते जाएंगे तो वॉट वी विल गेट द मिनरल्स, ओर्स, मिनरल ऑयल एंड अदर फ्यूएल्स. Exclude that, we will also get the rocks, water, elements, etc. Yes, na? So metals are obtained from where? These metals, whatever we are wearing or whatever we are using, just like the iron, aluminium and brass, copper. Sorry, not brass and copper, but the gold and the silver. These are all what? These are all the minerals. Which from where we get them? We will get them from their ores. Okay. By the extraction and purification, हम लोग उसको अच्छे से क्लीन करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, देन वी विल गेट अ प्रॉपर मेटल. ओके, एट दैट मोमेंट वी विल गेट द प्रॉपर मेटल. सो फ्रॉम दिस ओर वी विल रिमूव मेनी ऑफ द इम्प्यूरिटीज टू गेट द प्रॉपर मेटल और द प्यूरिफाइड मेटल. सो वॉट एवर dust and the impurities are there, no, we will call it as gone. Minerals and ores. Mineral wealth has an important place among the natural resources. ओके, ये मिनरल वेल्थ है ना, ये नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में एक बहुत बड़ी प्लेस है, उसके लिए एक इम्पोर्टेंस है. मिनरल्स आर फाउंड बाय वेरियस प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट. बहुत सारे प्रोसेसेस यूज़ करके हम लोग ज़मीन के अंदर से मिनरल्स को डग करते हैं. द रॉक्स ऑन द अर्थ आर मेनली मेड अप ऑफ मिनरल्स ओनली. दीज आर वॉट एवर रॉक्स वी कैन वॉच ऑन दिस, नो, दीज आर ऑल मेड अप ऑफ मिनरल्स ओनली. दीज मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वेम? These minerals we will get obtained. These minerals we will get from the mining, जो खोदना बोलते हैं हिंदी में. Only a few metals like the metals, for example, gold, silver, copper, platinum and bismuth occur in the free state in the nature. ये सारे चीज़ें हैं ना, फ्री स्टेट में मिलते हैं. द मेजॉरिटी ऑफ द मेटल्स अकर इन द फॉर्म ऑफ द कंपाउंड्स. बाकी सब कंपाउंड्स में मिलते हैं. मिनरल्स दैट कंटेन हाई प्रपोर्शन ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड द ओर्स. ओके, जब कभी भी कोई मिनरल्स हम लोग को दिखा है और उसके अंदर फ्री और जिसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ मिला हुआ हो या फिर बहुत सारे प्रोपोर्शन में मेटल रहेगा, वी विल कॉल इट एज ओर. ओके,
It is economical to obtain metals फ्रॉम द ओर्स. इट इज़ नॉट सो ईजी. ये 10-20 रुपये में नहीं निकलते हैं. ये मिनरल्स को निकालने का प्रोसेस बहुत ही इकोनॉमिकल है, विच इज़ रियली एक्सपेंसिव. ओके. द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिनरल्स बिकम क्लियर फ्रॉम देयर कैरेक्टरिस्टिक कलर, लस्चर, हार्डनेस, शेप, क्लेवरेज एंड अफोर्डेंस, फ्रैक्चर एंड स्ट्रेट. ये सारे तरीके से हम लोग को पता चलता है कि मिनरल कितने परसेंटेज का है और मिनरल किस तरीके से फाइंड आउट करने का है. ओके. सी हाउ आर मिनरल्स आर फॉर्म. हियर यू कैन सी दैट मैग्नेटाइट एंड माइका, halite and gypsum, diamond and graphite shells, these are all are the minerals we will get. So minerals are formed from the magma in the earth's crust and lava from the eruption of the volcanoes. So directly हम लोग जब अर्थ क्रस्ट होती है या फिर वॉल्केनिक इरप्शन होती है, सो व्हाट इज़ रिलीज्ड इनटू द एयर, दैट इज़ मैग्मा एंड लावा इज़ बीन रिलीज्ड इन द सरफेस of the volcano. So when they will get cool and get transformed into the crystals, जब वो ट्रांसफॉर्म होती है क्रिस्टल में, at that moment we will get the magnetite and mica. Okay, minerals are formed when the solid crystals remain behind after the process of evaporation. जब ये minerals कब फॉर्म होती है, जब है ना ये सॉलिड क्रिस्टल के जैसा बन जाते हैं. ओके. मिनरल्स आर फॉर्म्ड व्हेन सॉलिड क्रिस्टल्स रिमेन. ये सॉलिड क्रिस्टल्स जो है ना, इवापोरेशन होने के बाद में, इरप्शन होने के बाद में, ये प्रोसेसिंग में जो बड़े बड़े या फिर छोटे छोटे क्रिस्टल्स जो फॉर्म होती, क्रिस्टल्स जो रह जाती हैं ना, उसमें से हम लोग को हैलाइट एंड जिप्सम मिलती है. नेक्स्ट, मिनरल्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द वन फॉर्म इनटू द अनदर ड्यू टू द लार्ज चेंज इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर. व्हेन दिस मिनरल्स आर बीन गेटिंग द एक्सट्रीम, एंड जब ये मिनरल्स है ना बेटा बहुत से एक्सट्रीम टेम्परेचर को झेल लेते हैं, तब वो है ना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो बहुत हार्ड बन जाते हैं. दैट इज़ व्हाट डायमंड एंड ग्रेफाइट. ओके. नेक्स्ट वन, एक्चुअली ग्रेफाइट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग वन एक्चुअली. ओके. बट सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, conches and the shells etc. are formed from where? Are formed for the protection of that body. Exclude that. I would like to give one more example. जो टर्टल के ऊपर, टर्टाइज के ऊपर जो शेल रहती है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर इनऑर्गेनिक मिनरल्स फॉर्म होते हैं. अंडरस्टूड. द क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज. सो there are 3 types of classification. One is non-metal, second one is metal, third one is energy minerals. So non-metal minerals are those mica, sulfur, gypsum, potash, graphite, diamond and feldspar. These are all the non-minerals और non-metal minerals हैं. लेकिन मेटल मिनरल्स कौन से हैं? मतलब ये सारे जो हम लोग ने डिस्कस किए हैं ना, ये सब नॉन मिनरल्स है. ओके. ये मेटल्स नहीं है, इसीलिए वी विल कॉल इट एज नॉन मेटल मिनरल्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द मेटल मिनरल्स. आयरन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, बॉक्साइट, मैंगनीज, platinum and tungsten, these are all the metal minerals because these are all the metals. Next it comes the energy minerals. Energy, why we will call it as a energy minerals? Because when we will burn them, no, it will release the energy. That is why we will call it as a energy minerals. Those are coal, mineral oil, natural gas. Okay. You might have been seeing many of the gemstones when you are wearing the necklaces or when you are wearing any of the ornaments. So some important minerals like the diamond, ruby, sapphire, emerald, jade, zircon are used as a gems. These are all used as a gems. Gems are इन द ग्रेट डिमांड. ओके. वो लोग, उनकी रेट है ना बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं बिकॉज उनका रेट भी बहुत महंगा रहता है. वाई दिस इज? बिकॉज दीज आर ऑल नथिंग बट द रॉक्स एंड द मिनरल्स which have suffered from the extreme pressure and the temperature. Because of that, these rocks lost their colors and
get some of the other colors. Okay, deposits of the common salt are also found in the earth. Do you ever understand कि है ना जो common salt है, जो हम लोग की खाने की नमक है, वो भी अर्थ क्रस्ट में से मिलता है. दिस सॉल्ट इज कॉल्ड एज रॉक सॉल्ट. जो आप लोग समुद्र लवण बोलते हैं ना, दिस इज व्हाट, दिस इज अ रॉक सॉल्ट. इट इज यूज्ड इन द फूड इन सम मेडिसिन. ये हम लोग है ना मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिसिन के तौर पे यूज करते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी which will help in the mining. The Indian School of Mines, which is at the Dhanbad, was found in the 1926 to impart the education in only in mining. This institute has now been converted into the Indian Institute of Technology. Okay, ये institute 1926 में establish हुआ है for only for the purpose of giving the education regarding the mining. But now after that this institution has been changed its name to the Indian Institution of Technology. Okay. Some important minerals and ores. Let us learn about the iron ore. Okay, where we use this iron for making the furniture, for making the beams, for making the some railway tracks. Yes, na. For this all purpose we require the iron. Iron occurring in the impure state, it is called an iron ore. Okay, iron कहाँ से मिलती है? Iron improper state में मिलती है, जिसको इम्प्योर स्टेट में मिलती हैं, वी विल कॉल इट एज एन आयरन ओर. आयरन ओर इज यूज्ड टू मेक द वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम द पिन्स टू हैवी मशीन्स. ओके, आयरन हम लोग कहाँ से यूज़ करते हैं? जो छोटी छोटी सी पिन्स जो रहते हैं ना, वहाँ से लेकर बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स तक हम लोगों को आयरन की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज दीज आर ऑल मशीन्स आर मेड अप ऑफ मोस्टली हैवी मटेरियल, दैट इज आयरन. फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स which are made up of iron. Rails of the railway tracks, these are also made up of iron. The four main ores of the iron are what? Magnetite, hematite, limonite and the siderite. These are siderite. These are all the main ores from where we will get the iron. Now let us learn about the manganese. Okay, the manganese occur in the form of the its कार्बोनेट, सिलिकेट एंड ऑक्साइड. ये तीनों फॉर्म में हम लोगों को मैंगनीज मिलती है. द कंपाउंड्स ऑफ द मैंगनीज आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द मिनरल्स, मेडिसिन्स एंड फॉर गिविंग अ पिंक टिंज टू द ग्लास. ओके, हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ लिए थे कि जब ग्लास को हम लोग कलरिंग करना चाहते हैं तब हम लोग उसके अंदर मैंगनीज ऐड करते हैं. सो उसके अंदर से, उसकी वजह से वो मैंगनीज को पिंकिश कलर का, वो ग्लास को पिंकिश कलर का अपीयरेंस मिल जाएगा. सो मैंगनीज इज ऑल्सो यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑल्सो. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द बॉक्साइट. The bauxite is most important ore of the aluminium. Bauxite is what? It is most important ore of the aluminium. ये aluminium का important ore है. It contains 55% of the aluminium. ये bauxite के अंदर 55% aluminium रहता है. बॉक्साइट कंसिस्ट मेनली ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. बॉक्साइट के अंदर क्या रहता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड रहता है. एल्यूमिनियम इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. वी ऑल नो दैट इज वाई वॉट एवर यूटेंसिल्स वी विल यूज इन अवर किचन, नो, देज आर मेड अप ऑफ मोस्टली एल्यूमिनियम. एंड वॉट एवर वायर्स वी आर यूजिंग, नो, दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ द this aluminium. Why? Because copper is much expensive as compared to the aluminium. Okay, its density is low. इसका density बहुत ही low रहती है, इसीलिए इसका weight भी बहुत कम रहती है. Therefore it is used mainly in the aeroplanes, transport vehicles and to make the electric wires. Now let us learn about the number 4, copper. Copper is found in the impure state in the vicinity of the iron एंड अदर मिनरल्स. ओके, ये कॉपर कैसे मिलती है? ये इम्प्योर स्टेट में मिलती है जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स और आयरन रहती है. कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यस ना, इसीलिए बहुत बड़े बड़े जो हैवी मेटल्स, हैवी मशीनरी के लिए हम लोग
कौन से वायर्स यूज करते हैं? वी यूज द कॉपर वायर्स. देयरफॉर इट इज यूज्ड टू मेक द इलेक्ट्रिक वायर्स एज वेल एज इन द रेडियोज, टेलीफोन्स, व्हीकल्स, and for making the kitchen utensils and the statues also. The statues made up of the copper things are really expensive, but लेकिन इसका एक जो लस्चर रहते हैं ना क्लीन करने के बाद, वो लस्चर बहुत ही अट्रैक्टिव रहती है. अंडरस्टूड. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द mica. Mica is a bad conductor of electricity. See, till now we have learned that metals are good conductor of electricity. This mica is bad conductor of electricity. Okay. Its value depend on the thickness of its layer. इसका वैल्यू किस पे डिपेंड रहता है? ये जितना थिक है उसके ऊपर उसका रेट डिपेंड रहता है. ओके. माइका हैज़ मेनी यूजेस सच एज द आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी यूज होता है. डाइस मतलब कुछ कलरिंग करने के लिए भी यूज होता है. इलेक्ट्रिकल मशीन्स में यूज आता है. इक्विपमेंट्स में यूज आती है, स्पेशली आयरन बॉक्स के अंदर. ओके. वायरलेस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स जो हम लोग यूज करते हैं, जस्ट लाइक द मोबाइल्स एंड द ब्लूटूथ स्पीकर्स, दीज आर ऑल uses the mica. Now let us understand that. Find out how did the various ages of the prehistoric period get their names on the basis of the use of the metals. Okay, कि prehistoric periods में है ना metals का कैसे यूज़ करते थे, ओके, बेसिक यूज़ क्या रहता था, उनका नाम क्या था, ये थोड़ा तुम लोग इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द फ्यूएल. सी, till now we have learned about the minerals and the ores. Now let us learn about the fuel. What is meant by fuel? क्या होता है? This petrol, kerosene, these are all we call it as a fuel. Which natural resources do we use as fuel? Natural resources. Natural resources हम लोग wood को use करते हैं, correct ना? Various substances are used in day to day life for generating the energy. हम लोग एनर्जी को जनरेट करने के लिए हम लोग बहुत सारे चीज़ों की यूज़ कर रहे हैं आजकल. दिस इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी. यस ना. दीज substances are called as fuel. So fuel are found in the solid, liquid and gaseous state. Three states we can find the fuels, that is in the solid and the liquid and in the gaseous state. Now let us learn first of all about the solid state. Solid state is what? That is coal. Okay, koila. Million of years ago, forest got buried underground as a result of certain natural events. Layers of the soil kept getting deposited over them. So actually ये हुआ है millions of years पहले. क्या हुआ है? फॉरेस्ट फायरिंग हुआ होगा, फॉरेस्ट बर्निंग हुआ होगा, एंड एक्सक्लूड दैट कि जो नेचुरल कुछ कैलामिटीज़ हुए होंगे. सो उस तरीके से है ना, जस्ट लाइक हम ये बोल सकते हैं कि है ना नेचुरल कैलामिटीज़ हुए होंगे, अर्थक्वेक हुआ होगा या फिर फ्लड्स आए होंगे, जिसकी वजह से है ना बहुत सारे चीज़ें ज़मीन के नीचे दफन हो गया है. Okay, these things have got buried underground, and over on that, as the millions of years are keep on passing, the layers of the soil has got deposited over them. Okay, the very high pressure from the above and the heat from the earth's crust, what will happen? जब ऊपर से प्रेशर आएगा और नीचे से अर्थ क्रस्ट का हीट आएगा, slowly these buried things have converted into the fuel. So okay, so buried things are what? Obviously the animals and the humans and the plants. ये तीनों चीज़ें दफनाए गया है ना, दफन हो गया है ना. सो इन्हीं तीन चीज़ों से ही फ्यूल आती है. सो coal was thus formed from the remnants of those plants. That is why coal is said to be the fossil fuel. इसकी वजह से ये कोल को हम लोग fossil fuel कहते हैं. See, coal is found in mines. Peat, lignite, bituminous coal and the anthracite are the various types of coal. ये सब क्या है? These are all the types of coal. But anthracite is the coal of the highest grade. इसमें से anthracite क्या है? सबसे highest grade वाला coal है. The coal is in a way
अ स्टोर हाउस ऑफ द कार्बन। सो कोल क्या है एक्चुअली? कोल इज नथिंग बट द कार्बन, ओके, जिसके अंदर कार्बन कंपाउंड्स या फिर कार्बन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ बर्न टू ऑब्टेन हीट एनर्जी। कोल इज़ यूज्ड एज फ्यूएल। उसको हम लोग हीट एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए जिसको हम बर्न करते हैं, सो वी विल गेट व्हाट? वी विल गेट द heat energy. So coal is used for what? It is used as a fuel. It is used as a fuel in thermal power plant as well as to run the boilers of the railway engines. In the olden days, actually these railway engines used to work on the steaming process. ओके, सो पानी को स्टीम करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? पानी को स्टीम करने के लिए कोयला की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो तभी ये लोग ये कोल यूज़ करते थे। एग्जाम्पल, यू माइट हैव बीन सीन दिस मूवी लिंगा, करेक्ट नो? उसके अंदर स्टीम इंजन्स दिखाया है रेलवेज़ का। सो वो स्टीम इंजन को चलाने के लिए कोल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, द कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूएल फॉर कुकिंग एंड फॉर बेकिंग द ब्रिक्स इन द मील्स ऑन द लार्ज स्केल। यस ना, ब्रिक्स को बेक करने के लिए, या फिर गांव में जाते तो हम लोग कोयला के चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं, हुए बहुत बार देखे हैं। द गैसेस, फ्यूल्स, प्रोड्यूसर गैस एंड द वाटर गैस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल। कोल एज एन एनर्जी रिसोर्स। कोल को हम लोग कैसे यूज करते हैं? इट इज यूज्ड एज एन एनर्जी रिसोर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट्स ग्रेटली टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर कोल नहीं रहता तो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना रैपिड नहीं होता। ओके, बिकॉज दिस इज द cheapest mode of getting the energy. Okay, now just see here, millions of years ago we can see many of the living organisms used to live in the sea, but thousands of years ago we can see many में से बहुत कम हो गया है। यस ना? या फिर तुम लोग ये जो सी बेड पे आप लोग जो वाइट कलर का देख रहे हैं वो हुआ है, मतलब फर्स्ट में से सेकेंड वाले इसमें जाते जाते बहुत सारे एनिमल्स की डेथ हो गई है या फिर बरी हो गया है वो लैंड के अंदर। दैट इज वाई यू कैन सी द वाइट कलर प्रपोर्शन हैज़ गॉट इंक्रीज्ड, बट इन द थर्ड एट प्रेजेंट वी कैन सी दैट वो जो ब्लैकिश कलर का है ना, दैट इज द कोल। ओके, एंड दैट इज द नेचुरल फ्यूएल जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करके निकल रहा है फ्रॉम द सी बेड। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द नेशनल इंस्टीट्यूट्स। द ऑयल एंड द नेचुरल गैस कॉर्पोरेशंस, दैट इज व्हाट ONGC, was established on the 14th August 1956. It functions under the Ministry of the Petroleum and Natural Gas of the Government of India. ये किसके अंदर काम करता है? ONGC. दिस वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ ONGC इज द लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिसर्च and production of the company in the India. Actually we will get these fuels from the outside countries, but हमारे कंट्रीज़ के अंदर भी, हमारे सीबेड के अंदर भी किधर ना किधर जब नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे या फिर नेचुरल गैस मिलेगा तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों को ONGC का काम ONGC से परमिशन लेना पड़ता है। इट्स हेड ऑफिस इज एट द देहरादून विच इज़ एट उत्तराखंड। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? देहरादून में है, उत्तराखंड में। ONGC प्रोड्यूसेस अबाउट 77% ऑफ द क्रूड ऑयल एंड 62% ऑफ द नेचुरल गैस प्रोड्यूस्ड इन द इंडिया। ONGC का कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया में? मोस्टली अगर 100% क्रूड ऑयल हम लोग को मिल रहा है, 100% क्रूड ऑयल अपने पास अवेलेबल है, उसमें से 77% का क्रूड ऑयल है ना ONGC से ही निकलती है। और उसके अलावा जो नेचुरल गैस निकलती है 100%, जो नेचुरल गैस हमारे इंडिया में 100% यूज़ किया जाते हैं, उसमें से 62% ऑफ द नेचुरल गैस हमारा इंडिया का रहता है, वो ONGC कंट्रीब्यूट करती है। ऑफ द 7 कमर्शियल इंपॉर्टेंट अंडरग्राउंड ऑयल रिजर्व्स इन इंडिया, ONGC हैज़ सक्सेसफुली एक्सप्लोर्ड 6। सो अपने पास टोटल कितने अंडरग्राउंड ऑयल रिजर्व से इंडिया के अंदर? टोटल वी आर हैविंग द 7 ऑयल रिजर्व्स। ओके, आउट ऑफ विच 6 को हम लोग ने ऑलरेडी एक्सप्लोर किया है, 6 को हम लोग ने ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नॉट ओवर यूज़ द
we should not overuse the natural resources, neither we should use more the natural gas. Mineral oil. Mineral oil is the liquid fuel formed by the decomposition of the organic substances buried underground. So ये mineral oil क्या रहते हैं? ये mineral oil है ना एक तरीके का liquid fuel है जो है ना हम लोग को कहाँ से मिलती है, जो डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहते हैं ना अंडरग्राउंड के अंदर बरीड हो गया है, अंडरग्राउंड के अंदर दफन हो गया है, उसमें से हम लोग को मिनरल ऑयल मिलती है. मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो डेड बॉडीज ऑफ द सी ऑर्गेनिज्म सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी बिकॉज देयर मे बी ऑफ सुनामीज और बाय द वर्ल्ड वाटर पूल्स. ओके इसकी वजह से ये चीज़ हुआ होगा. द लेयर्स ऑफ द सॉइल एंड द सैंड कलेक्टेड ऑन देम ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड द टेम्परेचर रिमेन ऑन द डेड ऑर्गेनिजम्स वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द मिनरल ऑयल. जो डेड बॉडीज का टेम्परेचर है उसके अलावा अर्थ क्रस्ट से निकलने वाला हाई प्रेशर, समुंदर का जो लेयर्स रहते हैं ना उसका प्रेशर उनके दबाव डालने लगा है. एक्सक्लूड दैट नीचे के अंदर से जो अर्थ क्रस्ट घूमती रहती है वहाँ से टेम्परेचर मिलने लगा. सो ये क्या हो गया है, दिस ऑल विल कन्वर्टेड इनटू द मिनरल ऑयल. द अंडरग्राउंड मिनरल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू द ऑयल वेल्स. Mineral oil is found mainly in the oil sands, shale, sandstone and the limestone at the depth of 1000 to 3000 meters. ओके सो ये मिनरल ऑयल कहाँ से मिलती है, हम लोग को ऑयल वेल्स से मिलते हैं. और वो ऑयल वेल्स को हम लोग को कितना हद तक एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, कितना डीप जाना पड़ता है, वी गो इन द डेप्थ ऑफ 1000 to the 3000 meters डेप्थ फॉर गेटिंग दीज मिनरल ऑयल्स. ओके एंड हम लोग को ये कहाँ से मिनरल ऑयल मिलता है, वी विल गेट इट फ्रॉम द ऑयल सैंड्स या फिर शेड्स, अदरवाइज सैंडस्टोन से या फिर लाइमस्टोन से हम लोग को ये सब मिलता है. मिनरल ऑयल इज ऑल्सो नोन एज द पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल. What is the another name for the mineral oil which we also know it by the mineral oil, also been known by the petroleum or crude oil. It is greenish and brown in color. ये कैसे कलर रहती है, ग्रीनिश और ब्राउन कलर रहता है. पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी कंपाउंड्स मेनली ऑफ द हाइड्रोकार्बन टाइप. ओके पेट्रोलियम क्या है, ये एक तरीके का है ना मिक्सचर है जिसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन टाइप्स रहते हैं. इट इज ऑल्सो contains the compounds of the oxygen, nitrogen and sulfur. Petroleum is extracted through oil wells and refined by the fractional distillation to separate other compounds. Okay? सो हम लोग इसके अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके ये मिनरल ऑयल में से, ये क्रूड ऑयल में से बहुत सारे डिफरेंट तरीके का सामान निकालते हैं. सो what variety of things we will remove from that, that is petrol, gasoline, diesel, kerosene, naphtha, lubricant oil, tar etc. ये सारी चीज़ें हम लोग मिनरल ऑयल से निकालते हैं. are all obtained from the petroleum. Okay, these are all we get from the petroleum. They are used as a fuel and for the production of the dyes, pesticides, परफ्यूम्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स. इसके लिए हम लोग वो सब चीज़ों को यूज़ करते हैं. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द नेचुरल गैस. ओके या तो आइदर वी विल गेट मिनरल ऑयल और वी विल गेट द नेचुरल गैस. सो नेचुरल गैस इज एन इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल. ओके इट इज़ फाउंड एसोसिएटेड विद द पेट्रोलियम इन अंडरग्राउंड ऑयल वेल्स एंड इन सम प्लेसेस एज अ नेचुरल गैस अलोन. सो ये पेट्रोल जहाँ पे मिलता है उस जगह पे से, उस वेल में से हम लोग नेचुरल गैस भी निकाल सकते हैं. अदरवाइज ये कभी कभी फ्री स्टेज में भी मिल सकता है. द मेन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड बुटेन. ओके सो व्हाट दोज फोर थिंग्स आर, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड बुटेन. दीज आर ऑल present in small proportion in the natural gas. Natural gas is formed from the remnants of organisms buried deep underground and are subjected to the high pressure. जब ये सब है ना अर्थ क्रस्ट के नज़दीक रहेंगे वो सब एक्सट्रीम प्रेशर को झेल के गैस में कन्वर्ट होती है. सो दिस गैस वी विल नोन इट एज ए नेचुरल गैस. दिस फ्यूल इट कैन बी carried over a long distance by the means of gas pipelines. Okay, ये फ्यूल को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत अच्छी तरीके से सेंड कर सकते हैं और हम लोग इसको पास ऑन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द
पाइपलाइंस. ओके, बट इन द एब्सेंस ऑफ द नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस, ये क्या हो जाती है, जब यहाँ पे एब्सेंस हो जाएगा, नेटवर्क मिल नहीं जाएगा, इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड अंडर द हाई प्रेशर इनटू द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ओके, जब ये क्या होती है, ऑलवेज रिमेंबर वॉट एवर गैस वी आर यूजिंग, नो, that is Bharat gas, otherwise the LPG gas, these are what, these are all the natural gas जिसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा compressed करके liquefied में रखते हैं. Okay, that we call it as a compressed natural gas and liquefied natural gas, LNG. This makes it possible to transform that gas. Now what are the characteristics of the CNG? Okay, CNG is what, compressed natural gas. It catch fires easily, ये बहुत जल्दी फायर को कैच कर सकता है. नो सॉलिड वेस्ट रिमेन आफ्टर कंबशन. ओके, ये चीज़ यूज़ करते वक्त पीछे है ना, जैसे लाइक कोल यूज़ करते वक्त ऐश बच जाता है, वैसा CNG यूज़ करते वक्त कोई भी चीज़ नहीं बचता है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़. ओके, ये CNG के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों बहुत कम मात्रा में पाया जाता है या फिर दिखाई देता है. अदर पोल्यूटेंट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली एंड कंबशन कैन बी कंट्रोल्ड इजीली. ये अगर कहीं आग भी लगता है ना, इसको कंट्रोल करना बहुत इजी है. सो फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड रिमेनेंट्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिजम्स इन द रॉक. फॉसिल्स क्या हैं, जो हमारे डेड बॉडीज रहता है एनिमल्स या फिर प्लांट्स का, वो सब का है ना एक रॉक के अंदर डेड हो जाते हैं. सो फॉसिल्स आर द साइन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस लेफ्ट बिहाइंड द ऑर्गेनिज्म दैट गॉट बरीड बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. सो फॉसिल्स आर व्हाट, फॉसिल्स आर नथिंग, दे आर द डेड रिमेनेंट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स from the years and years and years. Sometimes impression of the organisms also seen on the surface of the coal and the stones. Okay, जिस stones के ऊपर ये animals का या फिर plants का buried हुआ है ना, उसका वो प्रेशर के वजह से ना उसके अंदर एक इम्प्रेशन आ जाती है. इम्प्रेशन मीन्स जब कभी भी मिट्टी के अंदर आप कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा तरीके से दबा के रखते हैं तो उसका जैसा शेप दिखाई देता है ना, वैसे ही शेप हम लोग को मोस्ट ऑफ द टाइम कोल्स के अंदर या फिर बरीड स्टोन्स के अंदर दिखा हुआ मिलता है. Student, thanks for watching this video. In the next part, we will gonna learn about the LPG and exclude that we will understand the medicinal plants. Okay.